Good morning, dear students. We were discussing the concept climate of India. We were discussing about the climatic controls of any place. In this, we were discussing about the 6 climatic control. These are our latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, also known as continentality, ocean currents and relief feature. We have already discussed about the latitudes and altitude. Today, we are going to discuss about the air pressure and the wind system, that how the air pressure and the wind system affect the climate of any place. You know very well about the atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? Air has weight and air, it exerts its weight as pressure on the surface of the earth. It depends on the latitude and altitude of the place. यानी कि जो एयर होती है उसमें वेट होता है और उस वेट को वो कैसे एग्जर्ट करती है? थ्रू द प्रेशर, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक pressure. And you know very well that our air always move from हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपने और इस फिनोमिना को याद भी रखना है कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, यानी कि हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर पर आपकी मूव करती है. सो वी डिवाइड आवर अर्थ इनटू डिफरेंट atmospheric pressure belts. So what are these? These are our equatorial low pressure belts. Second is our subtropical high pressure belt. Third is our subpolar low pressure belt. And fourth is our polar high pressure belts. Here one point has been mentioned that atmospheric pressure depends on the latitude and altitude of the place. So how it affect? It affect in these atmospheric pressure belts. So our earth is divided into 4 atmospheric pressure belt. These are our equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt and polar high pressure belts. Dear student, you know very well about the different latitude of the earth. As I told you, on the behalf of the latitude, we divide our earth into 2 hemispheres. These are our northern hemisphere and the southern hemisphere. In the northern hemisphere, we move from 0 degree to 90 degree north, and in the southern hemisphere, we move from 0 degree to 90 degree south. Means totally we have 180 degree latitude. So how we determine the atmospheric pressure belt? Have a look here. This is the concept of 7th standard. We discuss about the atmospheric pressure belt there. This is also known as the Farrell law because this atmospheric pressure idea or theory has been given by a geographer. The name is Farrell. So it is known as the also Farrell law. So this is our 0 degree. When we divide the earth into atmospheric pressure belt, we take certain latitude, like we take the 0 degree, 30 degree north, 30 degree south, 60 degree north, 60 degree south, 90 degree north and 90 degree south. Have a look here. This is our 0 degree. Here 0 degree. 0 degree is the equator or equator. अगर आप latitude के according देखें, the sun rays directly falls on the equator. अब sun rays directly आपकी fall करेंगी तो टेम्परेचर कैसा होगा? आपका हाई होगा. यहाँ पे आपने दूसरी बात याद रखनी है. If temperature is high, pressure is low. If temperature is high, pressure is low. And if temperature is low, pressure is हाई. यानी कि दोनों जो हैं रिवर्स में काम करते हैं. अगर टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर आपका लो होगा और अगर आपका टेम्परेचर लो होता है तो आपका प्रेशर हाई होगा. अब यहाँ पे आप देखें कि जो इक्वेटर है आपका, इक्वेटर पे आपकी डायरेक्ट रेज ऑफ द सन पड़ती हैं. अब डायरेक्ट रेज ऑफ द सन पड़ रही हैं
तो क्या है, टेम्परेचर आपका हाई है, और टेम्परेचर हाई होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कूल एयर जब वहां पे आएगी, तो कूल एयर आएगी, जैसे ही टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी इट बिकेम्स हॉट, हॉट होगी, इट बिकेम लाइट एंड मूव अपवर्ड। तो ये फिनोमिना आपका चलता रहता है। तो इक्वेटर आपका जो डोल्ड्रम, डोल्ड्रम का मीन्स होता है इनोसेंट, काम, यानी कि ये आपका बिल्कुल शांत एरिया है। यहाँ पे आपको जो है तूफान वगैरह नहीं दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही एयर यहाँ पे आती है एकदम से गर्म होती है, हीट हो जाती है, हॉट हो जाती है, और वो आपकी यहाँ से अपर साइड में सर्कुलेट कर जाती है। तो इसलिए इसको जो है डोल्ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो इक्वेटर का जो एरिया है टेम्परेचर हाई है, प्रेशर आपका लो है, तो इसलिए ये इसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ELPB, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका 0 डिग्री का कंपैरिजन अगर आप 30 डिग्री से करें तो यहाँ पे डायरेक्ट रेज आपकी फॉल हो रही थी, जबकि 30 डिग्री पे आपकी जो है स्लांटिंग रेज होगी, यानी कि 0 डिग्री के कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर आपका कैसा होगा, लो होगा। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कैसा होगा, हमेशा आपका हाई होगा। तो इसलिए इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो इक्वेटोरियल जो है इट इज द लो प्रेशर बेल्ट, और जो 30 डिग्री नॉर्थ है सब ट्रॉपिकल एरिया दैट इज द हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि 0 डिग्री का कंपैरिजन हमने 30 डिग्री से किया है। अब आप जो है यहाँ 90 डिग्री पे आप जाएं, 90 डिग्री पे हार्डली रिसीव दी सनरेज, ये एरिया जो है आपका सनरेज को हार्डली रिसीव करता है। अब हार्डली रिसीव करता है तो टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है लो होता है। यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर कैसा होगा आपका, हाई, इसलिए हम इसको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं, PHPB, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और अगर 90 डिग्री का कंपैरिजन हम 60 डिग्री से करें तो 90 डिग्री के कंपैरिजन में यहाँ पे 60 डिग्री पे आपका टेम्परेचर हाई होगा, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर आपका लो होगा, इसलिए हम इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये 4 प्रेशर बेल्ट हैं आपकी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब आप कहेंगे सर ये हाई प्रेशर बेल्ट है तो इनका इंपैक्ट क्या आता है, इनका इंपैक्ट आता है बेटा आपका विंड्स मूवमेंट, यानी कि विंड सिस्टम पर। विंड सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, एज यू आर अवेयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द विंड्स, दीज आर आवर परमानेंट विंड, seasonal wind and local wind. Local wind, the wind that move in a particular locality, for example northern plain of India, northern plain of India में समर सीजन में आपकी लू चलती हैं, तो जो लू है आपकी ये एक लोकल विंड है जो केवल और केवल नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में ही आपकी चलती हैं। ऐसे ही सीजनल विंड, सीजनल विंड द विंड दैट मूव इन अ पर्टिकुलर सीजन, जो एक पर्टिकुलर सीजन में आपकी चलती है, जैसे कि मॉनसून विंड, मॉनसून विंड को आपका सीजनल विंड के नाम से जाना जाता है, जो आपकी जो है जून से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपकी जो है चलती है। तो इसलिए उनको जो है मॉनसून विंड जो आपकी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आपकी जो है साउथ वेस्ट एशिया में आपकी प्रिवलेंट रहती हैं, तो वो आपकी जो है मॉनसून विंड होती है। और थर्ड आपकी होती है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड को सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, विंड ऑलवेज मूव, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आप यहाँ पे देखें बेटा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, second is our subtropical high pressure belt, third is our subpolar low pressure belt and fourth is our polar high pressure belt। अब यहाँ पे आप देखें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हैं, ये जो एरो है आपकी ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि आपका 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री की तरफ आपके आ रहे हैं। किस चीज को इंडिकेट करता है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो आपकी विंड है, दीज विंड आर नोन एज ट्रेड विंड। 3 परमानेंट विंड आपकी अर्थ पर हमेशा चलती हैं,
throughout the year. These are our planetary wind or the permanent wind, and these are divided into three categories. These are our permanent wind, ईस्टर्लाइज विंड एंड दी वेस्टर्लाइज विंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी विंड चल रही है, दीज आर दी विंड, दीज आर आवर ट्रेड विंड। यहाँ पे भी आपकी जो है इक्वेटर की तरफ विंड चल रही है, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो आपकी विंड्स हैं, दीज विंड्स आर आवर ट्रेड विंड। दूसरी कैटेगरी आप 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ। अब 30 डिग्री जो नॉर्थ का जो रीजन है, ये आपका जो हाई प्रेशर बेल्ट है, आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, और सब पोलर ये आपकी लो प्रेशर बेल्ट है। विंड हमेशा कैसे मूव करती है, आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो 30 डिग्री से लेकर यहां तक ये जो आपकी विंड्स हैं, ये आपकी जो है 30 डिग्री से आपका जो है 60 डिग्री की तरफ जा रही है, और ये विंड आपकी ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट होती है, इसलिए हम इनको ईस्टरलाइज विंड के नाम से जानते हैं। तो आपकी 30 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में जितनी भी आपकी विंड्स होंगी, दीज आर आवर ईस्टरलाइज विंड। उसके बाद आपकी आती है वेस्टरलाइज विंड, यानी कि सब पोलर हाई लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब विंड आपकी जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि पोलर एरिया से आपकी 60 डिग्री की तरफ चलेंगी। तो ये विंड आपकी वेस्टर्न डायरेक्शन में आपकी ओरिजिनेट होती है, तो इसलिए हम इनको वेस्टर्लाइज विंड के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे आपका विंड सिस्टम जो है वो आपका ओरिजिनेट होता है। तो ये विंड जो है हमारी प्लेनेटरी विंड के नाम से जानी जाती हैं। ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोज विंड टू मूव, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि विंड हमेशा कैसे चलती है, आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी चलती हैं। तो ये आपकी जो है विंड को जो है मूव करने के लिए बाधित करती हैं। The wind move which blow throughout the year in a particular direction are called planetary wind और permanent wind। तो जो विंड आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी चलती हैं, उनको हम जो है परमानेंट विंड के नाम से जानते हैं, या प्लेनेटरी विंड के नाम से जानते हैं। और ये तीन ही होती हैं बेटा, आपकी ट्रेड विंड, ईस्टर्लाइज विंड एंड वेस्टर्लाइज विंड। विंड कैसे ब्लो करती हैं, एयर ओवर वार्म लैंड राइजेज। जब आपकी एयर जो है किसी हॉट एरिया के संपर्क में आती है तो वो वार्म हो जाती है और वहां से वो राइज हो जाती है। कूलर एयर कम्स इन फ्रॉम सराउंडिंग एरिया। तो उस एयर का स्पेस लेने के लिए वहां की जो कूलर एयर होती है वो वहां पे आ जाती है, एंड रिप्लेस राइजिंग एयर, और उस राइजिंग एयर को रिप्लेस कर देती है। द कूल एयर इज हीटेड, ऐसे ही कूल एयर वहां पे जो आएगी वो भी गर्म हो जाएगी, एंड प्रोसेस रिपीट, और ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो ऐसे आपका विंड सिस्टम आपका चलता रहता है, परमानेंट होती है। अब आप कहेंगे सर प्रेशर बेल्ट्स हमको क्लियर है, विंड सिस्टम भी हमको क्लियर है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका चलता है, तो ये आपका जो है क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है, क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करेगा, अब आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ये दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, दिस इज अवर 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड है। दिस इज अवर 30 डिग्री, दिस इज अवर 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप एरिया जो इक्वेटर का जो एरिया है, ये एरिया जो है अगर आप लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसा एरिया है, हॉटेस्ट एरिया है, यानी कि एयर यहाँ पे आएगी गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमेशा जो है हॉट विंड या वार्म विंड आपकी हमेशा मूव करती है। अब अगर वार्म विंड मूव करेगी तो वहां की जो लैंड मासेस का टेम्परेचर है वो उसको अज्यूम करती है, और जहां जहां पे वार्म विंड चलेंगी उस एरिया का टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। शायद आपका जवाब रहेगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, हॉट क्लाइमेट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। और ऐसे ही पोलर एरिया में आपकी जो है कोल्ड विंड आपकी चलती है। तो कोल्ड विंड आपकी यहाँ पे चलेगी तो वहां के टेम्परेचर को अज्यूम करेगी और वहां के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी, और यहाँ पे आपका मीडियोकर आपकी चलेंगी, यानी कि वार्म और कूल एयर आपकी यहाँ पे जो है आपकी चलती हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम आपका होता है। तो हॉर्स लैटिट्यूड में भी आपका जो है ये गर्म रीजन से आपकी ओरिजिनेट होती है, तो मोस्टली जो विंड्स होती है वो भी वार्म विंड्स आपकी होती हैं। तो जिस प्रकार का आपका रीजन होगा उसी प्रकार से वहां का टेम्परेचर को आपकी विंड अज्यूम करेंगी, और आपकी जो है उसी प्रकार की एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी हो जाएंगी। तो प्रेशर एंड द विंड सिस्टम इंपैक्ट एवरी प्लेस ऑन दी अर्थ। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स
और आपकी विंड सिस्टम यानी कि ट्रेड विंड, ईस्टर्लाइज विंड और वेस्टर्लाइज विंड, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, a large body of water to cause a mild or moderate climate। जो आपकी लार्ज वाटर बॉडीज होती है यानी कि जो ओशनिक एरिया होता है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये आपके जो आसपास के एरिया होते हैं, नेबरिंग एरिया होते हैं, वहां की क्लाइमेट को माइल्ड और मॉडरेट यानी कि मीडियोकर करके रखता है। वेरी लिटल चेंज यानी कि वहां की क्लाइमेट में आपके चेंज नहीं आते। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी मीन्स कि जैसे जैसे व्हेन यू मूव फ्रॉम द सी, जब आप मूव फ्रॉम द सी यानी कि जब आप समुद्र से दूर जाते हैं, यू फील द एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट और सीजनल क्लाइमेट, यानी कि आप जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहां की क्लाइमेट जो है चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आप नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया को देखें तो ये समुद्र से दूर है, तो यहाँ की क्लाइमेट ओशनिक क्लाइमेट से, जो सीज क्लाइमेट है वहां से बिल्कुल डिफरेंट है। यू फील दी सीजनल चेंजेस हेयर, यहाँ पे आप सीजनल चेंजेस को फेस करते हैं। जैसे अभी आपने समर को फेस किया एंड अभी ट्रांजिशन पीरियड आपका चल रहा है, विंटर आपकी आ रही है, तो अब आप विंटर को फेस करोगे। लेकिन जो ओशनिक एरिया होता है वहां पे आपका जो है क्लाइमेट में चेंज नहीं होता, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। वहां पे जो है कोई आपका जो है नोटिसेबल सीजन नहीं होता है, वहां की क्लाइमेट हमेशा मीडियोकर रहती है। A body of water heat up cool down slower than a land mass। वहां की क्लाइमेट आपकी सेम क्यों रहती है? क्योंकि जो वाटर बॉडीज होती है ये आपकी जो है हीट और कूल ज्यादा लंबे समय में होती है, लॉन्गर टाइम लेती है इफ वी डू कंपैरिजन विद द लैंड मास। यानी कि लैंड मास जो आपकी होती हैं, लैंड मासेज आपकी जल्दी ही जो है आपकी गर्म होती हैं और जल्दी ही आपकी ठंडी हो जाती हैं, जबकि वाटर बॉडीज आपकी धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे आपकी कूल डाउन होती है। तो धीरे धीरे गर्म होती है तो उसमें क्या करती है कि जो विंड्स अज्यूम द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, तो वाटर बॉडीज का जो आपका टेम्परेचर होता है उनको विंड अज्यूम कर लेती है, धारण कर लेती है, एंड पासिस ओवर एंड कैरीज दैट टेम्परेचर विद इट। तो आसपास की जो लैंड मासेज होती है वहां पे वो उसी सेम टेम्परेचर को आपका जो है स्प्रेड कर देती है। तो इसीलिए वहां की जो क्लाइमेट होती है वो आपकी मीडियोकर क्लाइमेट होती है, मॉडरेट क्लाइमेट आपकी होती है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट आपका आता है ओशनिक करंट्स। जो आपकी ओशंस करंट्स हैं, ओशन करंट्स क्या होती हैं? आपकी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट मूव इन डेफिनेट डायरेक्शन थ्रू आउट द ओशन और थ्रू आउट द ईयर। यानी कि जो ओशंस करंट्स आपकी होती हैं, एज आई टोल्ड यू देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इन द ओशंस। दीज आर आवर wave, second is our tide and third is our ocean current। जो ocean currents आपकी होती हैं, these are the stream of water, ये stream of water होती हैं and they always follow in a particular direction and definite direction। ये आपकी एक निश्चित डायरेक्शन में ये आपकी फॉलो करती हैं। तो ओशन करंट क्या काम करती हैं? दे अज्यूम द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, वो वाटर के टेम्परेचर को अज्यूम कर लेती है, धारण कर लेती है, एंड दैट दे पास ओवर एंड कैरी विद दैट टेम्परेचर। और जहां जहां से ये गुजरती है वहां पे उस सेम टेम्परेचर को ये पास करती जाती है। यानी कि जहां जहां से ये गुजरेंगी वहां का टेम्परेचर आपका वैसा ही हो जाएगा। विंड पासिस ओवर द करंट, और इन करंट्स के ऊपर से जो विंड पास करती है मस्ट पास नियर द लैंड मास टू हैव एन इम्पैक्ट। वो भी वहां से टेम्परेचर को अज्यूम करती है और आसपास के लैंड मासेज में उसको स्प्रेड कर देती है। There are two types of the ocean current, these are our warm ocean current and cold ocean current। जो वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट होती है, अब आपको पता है बेटा कि जो आपकी करंट्स होती हैं ये दो प्रकार से आपकी चलती हैं, वन फ्रॉम ओशन टू सी टू लैंड एंड सेकेंड इज फ्रॉम लैंड टू सी। दो प्रकार से आपकी जो है ओशन करंट जो आपकी चलेंगी। द वेरी फर्स्ट इज लैंड टू सी एंड सेकेंड इज सी टू लैंड। अब जब आपकी लैंड टू सी या सी टू लैंड चलेंगी तो कैसे आपका इंपैक्ट करेंगी? फॉर एग्जाम्पल हियर एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ दी वार्म करंट। वार्म करंट का एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ओशन में आपकी वार्म करंट आपकी चल रही है। ये कैसे चल रही है? सी टू लैंड, ये सी टू लैंड आपकी चल रही है, यानी कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इंपैक्ट करेगा, सीधी सी बात है बेटा। क्योंकि
आपकी जो विंड है वो कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वार्म करंट क्या करेंगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, आपका इंक्रीज करेंगी। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर आपका लो होगा। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे आपका काम करता है। तो जैसे वार्म करंट्स आपकी हैं, कोई वाटर बॉडीज आपकी है, वाटर बॉडीज से आपकी जो है वार्म करंट्स आपकी चल रही हैं, सी ब्रीजेज आपकी चल रही हैं ओशन टू लैंड। तो यहाँ पे आपकी वार्म करंट्स हैं, वार्म करंट्स होंगी तो क्या होंगी, यहाँ के टेम्परेचर को अज्यूम करेंगे एंड पासिस टू दी लैंड, तो लैंड को ये पास करेंगी। तो इस प्रकार से जो यहाँ की जो क्लाइमेट होगी वार्म होगी, गर्म होगी एंड मॉइस्चर आपकी जो है उसमें मॉइस्चर भी होगा, यानी कि आपका जो है मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ की जो करंट्स हैं वो वार्म्स हैं आपकी। तो इस प्रकार से यहाँ पे रेनफॉल भी आपकी ज्यादा होती है। दूसरी आपकी करंट होती है कोल्ड करंट। अगर कोल्ड करंट आपकी ओशन टू लैंड चल रही है, आपकी सी टू लैंड आपकी चल रही है, तो इसमें क्या होगा आपका कि जो करंट्स आपकी चलती हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा आपका कि यहाँ के टेम्परेचर को अज्यूम करेगी, यहाँ के टेम्परेचर को अज्यूम करेगी तो क्या होगा, कूल क्लाइमेटिक होगी और ड्राई क्लाइमेट होगी। यानी कि यहाँ पे कूल क्लाइमेट हो जाएगी और ड्राई क्लाइमेट आपकी हो जाएगी। आपने सर्दियों में देखा होगा, अगर आप अपनी स्किन को रब करते हैं तो वाइट मार्क आपका बन जाता है। ये चीज दिखाता है कि यहाँ पे आपकी ड्राई कंडीशंस आपकी, आपको मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। तो वो किसकी वजह से होता है, कोल्ड करंट की वजह से आपका होता है। तो ओशंस में आपकी दो प्रकार की करंट चलती है, वार्म करंट एंड दी कोल्ड करंट। अगर आप इक्वेटर का एरिया आप देखें तो इक्वेटर पे हमेशा आपकी जो है वार्म करंट्स आपकी चलती हैं, और अगर पोलर एरिया में आप देखें तो पोलर एरिया में हमेशा आपकी जो है कोल्ड करंट्स आपकी चलती हैं। तो इसलिए इक्वेटोरियल का जो रीजन है यहाँ पे आपकी क्लाइमेट वार्म है, प्लस मॉइस्चर भी है, रेनफॉल भी आपकी होती है। जबकि जो दूसरा रीजन अगर आप देखें, यहाँ की क्लाइमेट आपकी कोल्ड होगी और यहाँ पे आपका जो है डेजर्टिक एरिया हो जाएगा, आपका जो है मॉइस्चर ड्राई एरिया, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी होगी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ का जो एरिया है वो कोल्ड आपका डेजर्टिक एरिया आपका आता है। जो आपका मिडल जो आपके लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पे आपकी वार्म करंट और कोल्ड करंट आपकी मिलती है। तो यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो आपकी मीडियोकर क्लाइमेट होती है। आपका जो है यहाँ ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी आपकी होती है, और एटलांटिक ओशन में आपकी वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलती है। दैट इज ऑल्सो आइडियल फॉर द फिशिंग। And last climatic control is our relief, also known as the mountain barriers. Our relief mountain barrier cause different climate on opposite side of the mountain. यानी कि जो माउंटेन जो बैरियर होते हैं ये विंड्स में आपका एक बैरियर का काम करते हैं। तो विंड्स में जैसे बैरियर का काम करते हैं, तो एक ऐसी स्लोप जो आपकी विंड की साइड में होती है, दो तरह की स्लोप आपकी होती हैं, एक होती है आपकी विंडवर्ड साइड और एक आपकी होती है लीवर्ड साइड। तो जो मॉइस्चर कैरिंग विंड मस्ट राइज टू गेट ओवर द माउंटेन, ऐसी एयर जो ओशन से होती हुई आई हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेके आई हैं, किसी भी माउंटेन से स्ट्राइक करती हैं, तो माउंटेन से स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा, वो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएंगी, क्योंकि उनमें मॉइस्चर होता है, वो हैवी आपकी होती हैं। सो एयर कूल्स, एयर जो है आपकी कूल हो जाती है एज इट राइजेज, जैसे ये ऊपर उठती है, लॉजिंग एबिलिटी टू हॉट वाटर, और ये आपकी जो वाटर को होल्ड करने की इनकी कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, कोजिंग रेन, जिसकी वजह से आपकी रेन फॉल होती है ऑन दी विंडवर्ड साइड, जो आपकी माउंटेन की विंडवर्ड साइड आपकी होती है। अभी मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि वेस्टर्न घाट में ज्यादा रेनफॉल क्यों होती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में आपकी ज्यादा रेनफॉल क्यों होती है, दैट फैक्टर विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड अफेक्ट देयर। इसके अतिरिक्त जो आपकी लीवर्ड साइड होती है, दिस लीव नो मॉइस्चर, यानी कि एक माउंटेन है, यहां से आपकी एयर आई, इससे स्ट्राइक की, जैसे जैसे ऊपर उठी है विंडवर्ड साइड है, यहाँ पे आपकी रेनफॉल ज्यादा होगी, रेनफॉल ज्यादा होगी तो मॉइस्चर कम हो जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर उठेंगी दूसरी साइड में आपका लीवर्ड साइड में आपकी आएंगी, तो यहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम रह जाएगा। तो यहाँ पे वेरी लो रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होगी, या नो रेनफॉल, वहां पे रेनफॉल नहीं होगी। तो वेस्टर्न घाट में भी यही सीन आपका, मुंबई वगैरह का जो रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि विंडवर्ड साइड है, और दूसरी अपोजिट साइड में अगर आप देखें तो वहां पे रेनफॉल आपकी नहीं होती, क्योंकि वो आपकी लीवर्ड साइड है, वहां पे
बहुत कम रेनफॉल होती है या रेनफॉल नहीं होती। तो इस प्रकार से माउंटेन जो है, जो एक बैरियर का काम करते हैं, वो भी आपकी जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं थ्रू दी विंडवर्ड साइड एंड दी लीवर्ड साइड। आपने देखा होगा जैसे ओशन से मॉइस्चर लेकर विंड आएंगी, आपकी आपकी जो है माउंटेन से स्ट्राइक करेंगी, यहाँ पे आपकी रेनफॉल हो जाएगी, सबसे ज्यादा रेनफॉल आपकी यहाँ होगी। जैसे जैसे ऊपर उठती जाएंगी कम रेनफॉल होती जाएंगी, और जब ये दूसरी साइड में माउंटेन की आएगी लीवर्ड साइड में, तो यहाँ पे आपकी नो रेनफॉल या वेरी लो रेनफॉल, और जैसे जैसे यहाँ पे आपकी जाती है तो ड्राई एरिया भी आपका रह जाता है। सो इन दिस वे our mountain barrier also affect the climate of any place. So these are the 6 climatic controls that affect the climate of any place. These are our latitude, altitude, atmospheric pressure and wind system. Next is our ocean currents. Next is our distance from the sea, and last is our mountain barrier. So dear student, this is enough for today. Thank you beta, have a nice day, God bless you.